Today we will learn about quadratic equation. So as we know, an equation where degree, that is highest power of the variable. Degree means highest power of variable. Highest power of variable in the given equation. An equation where degree of the equation is 2 is known as quadratic equation. For example, we have 4x squared plus 5x plus 3 equal to 0. This is an quadratic equation having the variable x. Here maximum power of the variable is 2. Or some another example, x plus 1 into x plus 2. Here 4x plus 3 into 4x plus 5. We can solve it and check whether the given expression have the highest power 2 or not. We solve it. X square plus 3x plus 2. And here 4x multiplied by 4x, that is 16x square. 4x by 5, that is 20x. 3 4s are 12x. 3 5s are 15. And at last we will got the result as x square minus 16x square, that is minus 15x square. 3x minus 32x. 3 minus 32 minus 29x. Last 2 minus 15, that is minus 13 equal to 0. Here also we got as highest power of the variable is 2. So we can say the given equation is quadratic equation. So as we know, for quadratic equation maximum power of variable must be 2. तो अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आपके पास 2 होती है तो ऐसी जो भी इक्वेशन होगी वो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी. तो ये तो हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान. सबसे पहले ये तो पता चले कि आखिर इक्वेशन कैसी है. After that we will solve it. Now solution of quadratic equation. Solution of quadratic equation. First is factorization method. We have factorization method to solve quadratic equation. Second method is by completing the square method. Second method आपके पास है completing the square method. इस मेथड से भी आप quadratic equation को solve कर सकते हैं. Now we have third method, that is quadratic formula, which is also known as Sridharacharya formula. Sridharacharya, that is a famous Indian mathematician formula. Sridharacharya formula. Okay. Now, first of all, we will go for factorization. Okay, how to solve the given quadratic equation by using factorization method. Consider we have an equation x square minus 2x plus 1 equal to 0. So this is a quadratic equation. Why? Because here degree of the given equation is 2. We have given solve for x. हमें x की वैल्यू निकालनी है. कौन सा फार्मूला यूज करने जा रहे हैं? फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं. तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले फैक्टर बनाने हैं. कैसे बनाते हैं फैक्टर समझिए. Let us understood how to make a factor. Okay, first of all multiply constant term with coefficient of x square. We would got the result plus 1 into x square plus 1 into x square. We will got the result as plus x square and sum
This is the product, and sum minus 2x. It means we have to make a factor in such a way that if we would add them, we got the result minus 2x. If we would multiply them, we would got the result as plus x square. तो अगर हमारे पास इस प्लस 1x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर हम बना लें जिनको जोड़ने के बाद तो माइनस का 2x आ जाए और मल्टीप्लाई करने से प्लस 1x स्क्वायर आ जाए, अगर ऐसे कोई फैक्टर हैं तो हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं आखिर हम फैक्टर। तो यहाँ मेरे पास क्या आया, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस 1, तो 1 के फैक्टर हमें बनाने हैं, ऐसे बनाने हैं कि 1 के फैक्टर के जोड़ मल्टीप्लाई करने में तो पॉजिटिव आए और जोड़ने के बाद S4 एडिशन सम ऑफ द नंबर, तो उनका सम करें अगर हम तो हमारे पास माइनस का 2x। तो चलिए देखते हैं जिनको जोड़ने से पॉजिटिव आए और ऐड करने से नेगेटिव आए, ऐसे दो नंबर क्या होने चाहिए, हमेशा नेगेटिव होने चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हमारे पास केवल दो ही कंडीशन में आ सकती है, जब दोनों नंबर पे पॉजिटिव का साइन है तो मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव हो जाएगी, या फिर दोनों नंबर पे नेगेटिव का साइन है तो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होने के मेरे पास दो एजम्पशंस थी, लेकिन हमने देखा बीच में हमें नेगेटिव चाहिए, अगर दोनों पॉजिटिव का सम करेंगे तो सम भी पॉजिटिव ही आएगा, +2 + 4 दैट इज प्लस का 6, यहाँ तो माइनस है तो इसका मतलब ये हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ दोनों नेगेटिव हमें यूज करना पड़ेगा। तो 1 के कौन से फैक्टर है जिन्हें जोड़ने के बाद -2x आ जाए, 1 का तो केवल एक ही फैक्टर आता है, 1 बन जाएगा, तो कोई फैक्टर बनता ही नहीं, तो दोनों पे नेगेटिव लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, -1 और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -2, दोनों में x लगा लीजिए, और मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, -1 to माइनस प्लस 1 1 जा 1, x को x से करोगे तो x का स्क्वायर बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इस हिसाब से। तो मेरे पास फैक्टर क्या बने, -1x, तो इस -2x की जगह हम यूज कर रहे हैं -1x और -1x, आगे क्या है +1 इक्वल टू, तो यहाँ स्टार्टिंग के दोनों में से कॉमन, आगे दोनों में से कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, x की पावर 2 x की पावर 1, क्या कॉमन आ जाएगा, x की 1 पावर कॉमन आ जाएगी, 2 पावर और 1 पावर में क्या कॉमन आ जाएगा, 1 पावर, तो यहाँ क्या बच गई, 2 पावर में से एक पावर आपने ले ली, x की 1 पावर बच चुकी है, एक ही पावर थी वो आपने बाहर ले ली, तो क्या बच गई, x की पावर 0 और किसी की पावर 0 क्या होता है 1, यहाँ क्या कुछ है 1 कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई देगा, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 हमेशा कॉमन होता है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये x आपका ऐसे कैसा, और बाहर आपने माइनस का निशान कॉमन लिया है तो अंदर का जो निशान है वो बदल जाएगा, तो प्लस की जगह क्या लगा लोगे माइनस, और ये बना इक्वल टू 0। और अगर फैक्टर बनते हैं और आपने ठीक बना लिए हैं तो ध्यान देना ये दोनों के दोनों हमेशा सेम, ये दोनों के दोनों सेम है, तो फिर से आपके पास कॉमन निकलेगा, यहाँ x - 1 इज कॉमन बोथ, वी विल गॉट द रिजल्ट x, ये आपने कॉमन निकाल ही लिया, क्या बचता है x - 1, ये आपके पास बच गया, और किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। जब दो फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल, आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0, अगर हम इस x - 1 को 0 के इक्वल करते हैं तो x की वैल्यू, दूसरे x - 1 को 0 के इक्वल करते हैं, ये भी वही है, x की वैल्यू 0 + 1, तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई, ये भी अपना सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने फैक्टराइजेशन मेथड लगा के x की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर ली। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स हैं, हम अपनी बात को क्लैरिफाई करेंगे। 6x² - x - 2 = 2। चलिए इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कहानी वही, इस कांस्टेंट को कोएफिशिएंट ऑफ x² से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आया -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको करोगे 6x², क्या आया रिजल्ट माइनस इनटू प्लस दैट इज माइनस, 2 6 are 12 और x² माइनस का 12x² आ गया, -2 को इस कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी विद
द टर्म मल्टीप्लाई कर लिया, कांस्टेंट को हमने इस x स्क्वायर वाले कंप्लीट से मल्टीप्लाई कर लिया। तो हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में आ रहा है कितना, माइनस का 12x स्क्वायर। जैसे ही प्रोडक्ट हमारे पास नेगेटिव आया, माइंड में दो बातें आई, प्रोडक्ट नेगेटिव, दो नंबरों का प्रोडक्ट नेगेटिव केवल एक ही बात में होगा, या तो पहला नंबर पॉजिटिव और दूसरा नंबर नेगेटिव। पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, जब पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा तभी उनका प्रोडक्ट आपका नेगेटिव आएगा, नहीं तो लाइफ में कभी भी प्रोडक्ट नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव या फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, ये कंफर्म है। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा और तो हम क्या करेंगे, तो टर्म्स क्या होती हैं, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आए तो टर्म्स हमेशा सब्ट्रैक्ट होती हैं, टर्म्स हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट। जो टर्म्स हैं हमेशा क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, टर्म्स हमेशा घटाई जाएंगी। अगर दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट है नेगेटिव आ रहा है तो जो फैक्टर बनाओगे वो हमेशा घटाए जाएंगे। अगर कौन कौन से फैक्टर है, किसके बनाने हैं फैक्टर, ये जो नंबर आया इसके फैक्टर बनाने हैं। कौन है नंबर, यहाँ 12 है नंबर यहाँ, तो 12 के फैक्टर बनाइए, क्या क्या बन सकते हैं 12 के फैक्टर, 1 into 12, 12 का एक फैक्टर आ जाता है 1 और 12, ठीक है, 1 और 12। 12 का सेकंड फैक्टर 2 6 जा 12, सेकंड फैक्टर आ गया 2 और 6, थर्ड फैक्टर 3 4 जा 12 यानी 4 और 3, और फिर उसके बाद 4 3 जा 12 रिपीट हो गया, जहां रिपीट हो जाए समझ लीजिए बस इतने फैक्टर बनेंगे। तो हमारे पास तीन फैक्टर है, 1 और 12, दूसरा फैक्टर 2 और 6, तीसरा फैक्टर 4 और 3। अब एक बात का ख्याल रखना, आपने कहा इनका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आना चाहिए, यानी एक पर प्लस तो दूसरे पे माइनस, ये बात करना है। तो किस पर प्लस लगाएं किस पर माइनस लगाएं, आप ये देखिए बीच में कौन सा निशान चाहिए, माइनस, तो बड़ी वाले टर्म के ऊपर वही निशान चाहिए जो बीच में आपको चाहिए। बीच में माइनस है तो बड़े वाले पर माइनस लगा दो, तो छोटे पे प्लस लगाना पड़ेगा, बड़े पर माइनस, छोटे पे प्लस, बड़े पर माइनस तो छोटे पे प्लस, ठीक है। बीच वाले में जो निशान है माइनस, बीच वाले में माइनस है तो बड़े वाले पर आप माइनस का निशान लगा दीजिए। ऐसा करने से क्या आया आपके पास, जोड़ के देखिए, -12 + 1 कितना है, -11, क्या बीच में -11 है, नहीं है, तो ये फैक्टर नहीं बनेगा। दूसरा -6 + 2 कितना होता है, -4, क्या बीच में -4 है, ना, ये भी नहीं बनेगा। इनको जोड़िए, -4 + 3 कितना है, -1, क्या बीच में -1 है, हाँ जी है, तो ये फैक्टर इसका बनेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ इन सभी तीनों फैक्टर में से मैंने -4 + 3 ये फैक्टर मैंने सेलेक्ट किया, सबके साथ x था, यहाँ बीच में x था, इनके साथ x लगा दोगे तो इस -1x की जगह आप लिखोगे -4x + 3x। ओके, लेट अस कंप्लीट इट। आइए इसे कंप्लीट करें। क्या कुछ कहता है ये, 6x², क्या कहा आपने, -4x + 3x, तो इस -1x की जगह -4x + 3x -2 = 0। अब यहाँ 6 और 4 क्या लेंगे, कॉमन क्या आएगा 6 और 4 में, 2 कॉमन, x की पावर 2 और x की 1 पावर में x की 1 पावर, क्या बचेगा 3x -2x, 4 में से 2 कॉमन ले लोगे 2 बच जाएगा, x की 1 पावर थी 1 ले चुके तो x की 0 पावर दैट इज 1, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ 3 और 2 में कोई कॉमन नहीं है, x की 1 पावर यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 हमेशा कॉमन होता है, तो 1 हमेशा कॉमन ले लिया तो क्या बचा, जब 1 कॉमन लिया तो जो ये टर्म है वैसे के वैसे लिख दो, तो 3x - 2x। अब आपके फैक्टर ठीक है तो फिर वही बात, ये दोनों सेम, एक फैक्टर सेम आपका होना ही चाहिए, फैक्टर सब कुछ सही बना हुआ है तो जो यहाँ ब्रैकेट में था वही यहाँ होना चाहिए, अगर बनते होंगे फैक्टर तब के बाद। तो चलिए बन रहे हैं, इन दोनों में आपको कॉमन मिल चुका है, जब कॉमन मिल चुका है बाहर निकाल लीजिए, ले लिया आपने कॉमन, यहाँ क्या बचा ओनली 2x से तो आप बाहर निकाल ही चुके हैं, प्लस का निशान ये वाला, और ये प्लस का नेगेटिव, और ये किसके इक्विवेलेंट है 0 के इक्वल। तो अगर दो फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है, अगर दो फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है, देन आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। यहां से 3x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2/2, यहां से 2x इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1/2। In this way we can find out the solution of the given quadratic equation, and this method is known as factorization method, that is by making the factor।
तो चलिए इस तरह से आपने फैक्टर बना के, अलग अलग फैक्टर बना के इसको सॉल्व कर लिया। कौन सा मेथड लगाया? स्प्लिटिंग का मेथड। एक प्रकार से आपके पास जो इक्वेशन थी लास्ट ईयर आपने सीखा हुआ है स्प्लिटिंग का मेथड, तो वो आपने अप्लाई कर दिया है। तो चलिए आगे, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। चलिए इसके फैक्टर बनाते हैं। 2 3 जा 6x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड विद 3x स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाइड विद 3x स्क्वायर, वी गॉट द रिजल्ट प्लस 6x स्क्वायर। तो 6 के हम ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिन्हें जोड़ने के बाद माइनस 2 रूट 6। नाउ मेक द फैक्टर ऑफ 6 in such a way that we add them, we got the result as minus 2 रूट 6। okay, now 6 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, नो अदर देन दिस। आपने देखा आपको 2 रूट 6 चाहिए, तो 2 रूट 6 चाहिए, डायरेक्टली आपका बन रहा है माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। व्हाई? ऑलरेडी वी हैव रूट 6, हमारे पास पहले से ही रूट 6 है। जब पहले से ही रूट 6 आपके पास है तो समझ लीजिए रूट 6 जब दोनों में मिल ही गया और इनको जोड़ने के बाद 2 रूट 6 चाहिए, तो दोनों में माइनस लगा दो। माइनस लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2 रूट 6 तो पहले से ही बन गया, बाकी की तलाश करो। पहले से इतना ही चाहिए हमें, और नहीं चाहिए, तो इसका मतलब फैक्टर आपका ऑलरेडी तैयार है, ऑलरेडी तैयार है। तो चलिए कॉमन लीजिए, देखते हैं क्या कुछ कैसे कॉमन आप ले सकते हो। इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं समझने के लिए। 3x स्क्वायर को मैं लिखने जा रहा हूं रूट 3 इंटू रूट 3 x स्क्वायर। किसी भी रियल नंबर को, किसी भी रियल नंबर को उसके स्क्वायर रूट के स्क्वायर में लिखा जा सकता है। किसी भी रियल नंबर को उसके स्क्वायर रूट के स्क्वायर में लिखा जा सकता है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, वही आ जाएगा। सो 3 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, x स्क्वायर को x इंटू x। समझो रूट 16 को क्या लिख सकते हो? रूट 6 को क्या लिख सकते हो? रूट 3 इंटू रूट 2 x आता है, इट इज रूट 6 को रूट 3 इंटू रूट 2 x प्लस 2 को रूट 2 इंटू रूट 2, और किसके इक्वल है आपका? 0, ये आपका 0। इन दोनों में कॉमन, लास्ट के दोनों में कॉमन लीजिए। यहाँ क्या कुछ है? रूट 3 हमारे पास है, यहाँ x की 2 पावर है, यहाँ x की 1 पावर है। 2 पावर 1 पावर में क्या कॉमन आएगा? 1 पावर कॉमन आ जाएगी। क्या बचेगा यहाँ? रूट 3 और x की 1 पावर, तो ये तो आपने कॉमन ले ही लिया है, तो ये वाला रूट 3 बच गया। x की 2 पावर में से 1 पावर आपने ले ली, से 1 पावर बच चुकी है आपके पास माइनस। अब रूट 3 आप ले चुके हो, बाहर ले चुके हो, तो क्या बचा है? रूट 2 बच गया। x की 1 पावर आप बाहर ले चुके हो, तो इनटू में 1 लगा दो, रूट 2 इंटू 1 रूट 2 ही होता है। बस ये हो गया आपका। आगे आगे आपने देखा यहाँ रूट 2 दोनों में कॉमन है। चलिए जी, बाहर माइनस का साइन, इसका भी ख्याल रखना। रूट 2 आपने कॉमन लिया, x इधर इधर नहीं है तो यानी नहीं कॉमन आएगा। तो जब केवल रूट 2 आपने कॉमन लिया तो क्या बचता है? रूट 3 x, बाहर आपने माइनस कॉमन लिया, अंदर का साइन चेंज होगा, अंदर का साइन प्लस है तो प्लस की जगह माइनस बन जाएगा, और रूट 2 आपका एज क्या बच गया? इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास रूट 3x माइनस रूट 2, ये भी आपका रूट 3x माइनस रूट 2, तो ओवरऑल कॉमन आ गया रूट 3x माइनस रूट 2। यहाँ क्या बचता है? रूट 3x, इधर कितना है? माइनस रूट 2, इसके इक्वल 0। ये पूरा तो आपने कॉमन ले ही लिया, दोनों में सेम था। क्या बच गया? ये रूट 3x माइनस रूट 2 किसके इक्वल है? जब सारा बन गया इक्वल टू 0। फिर से दो फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन 0, आइदर फर्स्ट 0 और सेकंड 0। जब फर्स्ट को 0 के इक्वल करोगे आप, रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से रूट 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस रूट 2 उस तरफ ले जाओगे तो 0 प्लस रूट 2, रूट 2 आ गया, तो x की वैल्यू क्या होगी? रूट 2 अपॉन रूट 2 अपॉन रूट 3। यहाँ से भी सेम रिजल्ट आएगा, तो x की वैल्यू आ गई रूट 2 अपॉन रूट 3 और सेम आता है। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन, इस तरह से आपको सॉल्यूशन निकालना, और इस मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए कुछ एप्लीकेशंस है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, कुछ एप्लीकेशंस है, वो एप्लीकेशंस हम देखते हैं।
दिया है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। कंसेक्यूटिव मींस 1 2 3 4 5 लाइक दिस। 2 कैसे आया, 1 में 1 ऐड कर लेंगे। 3 कैसे आया, 1 + 2। 4 कैसे आया, 1 + 3। 5 1 + 4। इन दिस वे अगर इस 1 की जगह हम x लगा लें, 1 की जगह x लगा लें, तो ये x हो जाएगा x + 1 x + 2 x + 3 x + 4। These are the consecutive natural number. These are consecutive natural number. Assumption के अकॉर्डिंग आप ये consecutive natural number बोलेंगे, consecutive natural number, consecutive natural number। अगर consecutive natural number के बारे में बात करें तो x x + 1 x + 2 x + 3 ऐसा आ सकता है। लेकिन अगर यही कहा जाए consecutive even natural number, consecutive even natural number, even natural number, consecutive मतलब लगातार एक के बाद एक। तो even की कहानी है जैसे 2 4 6 8, ये even natural number है 2 4 6 8। अगर मैं 4 के बारे में बात करूं तो 4 कब आया, जब 2 में आपने 2 ऐड किया, 2 में 2 ऐड किया। 6 कब आया, 2 में आपने 4 ऐड किया। 8 कब आया, 2 में आपने 6 ऐड किया। तो इस 2 को अगर हम x मान लें, x x + 2 x + 4 x + 6, this is the consecutive even natural number, consecutive even natural number, x x + 2 x + 4 x + 6 and similarly consecutive odd natural number, similarly consecutive odd natural number, odd natural number। अगर हमें consecutive odd natural number के बारे में बात की जाए, हमसे कोई consecutive odd natural number के बारे में बात करें तो हम क्या कहेंगे। अगर मैंने एक को मान लिया 1 3 5 7, these are the consecutive odd natural number। 1 3 कैसे आया, 1 + 2। 5 1 + 4 7 1 + 6। in this way we can say 1 की जगह अगर मैं x मान लूं तो x x + 2 x + 4 x + 6। कहने का मतलब ये है जो इवन में आपने एज्यूम किया था वैसा ही ओड में है, यानी सारी बातें फर्स्ट नंबर पे डिपेंड करती है। अगर फर्स्ट नंबर आपका इवन है तो उसमें 2 ऐड करने से अगले नंबर भी इवन हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर अगर ओड है तो उसमें 2 ऐड करने से नेक्स्ट नंबर भी ओड होते जाएंगे। तो चाहे कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का हो चाहे ओड, तो क्या मानना पड़ेगा, x x + 2 x + 4 x + 6। इस प्रकार से आप इसे मानकर अपने काम को इजी बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और छोटी मोटी बातें डिस्कस करते हैं जो कि इस एक्सरसाइज के लिए, इस टॉपिक के लिए जरूरी है। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो मैं लेने जा रहा हूं। जैसे यहां दिया गया फाइंड 2 नंबर्स, फाइंड 2 नंबर्स, find 2 numbers whose sum, 2 नंबर। कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक। whose sum is 27, whose sum is 27 and their product is 182, product is 182। हमें 2 नंबर बताने हैं जिनका सम तो 27 होगा और उनका प्रोडक्ट क्या होगा, 182 होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे आप नंबर। तो कंसीडर कीजिए लेट, अगर हमने फर्स्ट नंबर को x मान लिया, क्योंकि 2 नंबरों का जो सम है वो 27 है, एक का 13 तो दूसरा 14, एक 15 तो दूसरा 12, दोनों का सम 27 है। तो एक को अगर x मान लो तो दूसरा कैसे आएगा, 27 में से माइनस करके आएगा। आगे इसने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाइए, ये कहता है देयर प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट मींस फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, 182। यहां से बन गया है 27x माइनस x² माइनस 182 इक्वल टू 0। अगर यहां हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस x² का प्लस x² बन जाएगा, प्लस 27x की जगह माइनस 27x आ जाएगा और माइनस 182 की जगह प्लस 182 आ जाएगा इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। इसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। 182 को x² से मल्टीप्लाई कीजिए,
182 हो गया। 182 के ऐसे फैक्टर बनाइए ऐड करने के बाद -97। चलिए देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, सम दोनों का नेगेटिव आ रहा है, मींस दोनों के ऊपर साइन नेगेटिव होना चाहिए। ओके, 182 के फैक्टर 1 into 182, 2 से करिएगा 2 into 91, सम दोनों पर नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि दोनों पर माइनस करोगे तभी बीच में माइनस का साइन आएगा। तो -91 माइनस का 2 -93, आपको तो 27 चाहिए। 3 से लेकर देखेंगे नहीं बनेगी बात, 3 से कटता ही नहीं है। 4 5 6 में भी नहीं, 7 में जाएगा। 7 2 जा 14, 14 4 7 6 जा 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब दोनों पे नेगेटिव साइन लगाएंगे तो -17, माइनस का 27 हो गया। तो इट मींस फैक्टर कौन से बने, -14 और -13। तो कहने का मतलब अब हमने फैक्टर भी समझ लिए। माइनस का 13x माइनस का 14x हो गया, जोड़ेंगे तो -27 बन जाएगा, प्लस 182 0 हो गया। यहाँ से क्या कॉमन है, x की 2 पावर x की 1 पावर, x की 1 पावर कॉमन है, क्या बच जाएगा यहाँ x की 1 पावर माइनस 1 पावर आप ले चुके हैं 13 आ जाएगा। 14 और 182 इसमें क्या कुछ कॉमन आएगा, 14 और 182, 14 से अगर डिवाइड करें तो क्या बचता है, 14 ले लीजिए कॉमन, x माइनस का 14 1 जा 14, 14 1 जा 14 4 14 3 जा। अगर फैक्टर आपके ठीक है तो दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम है। इट मींस एक फैक्टर आपका आ गया x माइनस 13 और दूसरा फैक्टर आ गया x माइनस 14। तो दो फैक्टर आपके पास आ चुके हैं जो 0 के इक्विवेलेंट है। और अगर दो फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है, आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। तो चलिए हम फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल करते हैं। फर्स्ट फैक्टर आपका x माइनस 13 है, आइदर दिस इक्वल टू 0, और सेकंड फैक्टर आपका x माइनस 14 है, इसे आप 0 के इक्वल करो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -13 कर ले जाओ प्लस 13, यहाँ -14 कर ले जाओ प्लस 14, तो x की वैल्यू आइदर 13 और 14। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू या तो 13 होगी या 14 होगी। और अगर x की वैल्यू 13 का मतलब फर्स्ट नंबर 13, तो सेकंड क्या हो जाएगा 27 माइनस 13, 27 माइनस 13 मींस 14। तो कहने का मतलब फर्स्ट नंबर या तो फर्स्ट नंबर 13 अगर है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 13 दैट इज 14, या फर्स्ट नंबर 14 तो सेकंड 27 माइनस 14 दैट इज 13। तो इस तरह से आपको नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर क्या आ गए हर केस में 13 14 14 13, यानी नंबर्स आ गए 13 और 14। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। एक छोटी सी एप्लीकेशन आपके सामने रखी थी जो कि आपके टेक्स्ट बुक में है। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वन बाय वन करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलिए हमारे पास एक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0। यहाँ पर a b c ये तीनों के तीनों रियल नंबर्स होते हैं और यहाँ a कभी भी 0 के इक्वल नहीं है। a b c तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए और a कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से क्या होगा, अगर a 0 होगा तो 0 × x² दैट इज 0, तो इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 रह जाएगी। और अगर इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 1 रह जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो x² है दैट इज हाईएस्ट डिग्री टर्म, उसका जो कोएफिशिएंट है वो कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो चलिए अगर क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में हम बात करते हैं तो देखिए क्या कुछ है। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए ये दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट। Let us solve the quadratic equation by completing the square method. By completing the square method. Completing the square method.
consider we have the equation ax square plus bx plus c equal to 0. Then first step is making the coefficient of highest degree term, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट है उसे हमें यूनिटी यानी 1 बनाना है, दैट इज 1 बनाना। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां मेरे पास ax स्क्वायर, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1 बनाने के लिए a से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये bx स्क्वायर होता तो b से डिवाइड करते हर किसी टर्म को, cx स्क्वायर होता तो c से डिवाइड करते, 2x स्क्वायर होता तो 2 से डिवाइड करते। तो ये पहला स्टेप है इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का। तो पहले स्टेप के अकॉर्डिंग हम किससे डिवाइड करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 की हर किसी टर्म को a से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग both sides ऑफ इक्वेशन नंबर 1, किससे डिवाइड करने जा रहे हैं, बाय a, हम a से डिवाइड करने जा रहे हैं। अगर a से डिवाइड करेंगे तो ax स्क्वायर अपॉन a ये बन जाएगा b अपॉन ax, ये हो जाएगा c अपॉन a इक्वल टू 0। यहां से कैंसिल आउट होके क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। नेक्स्ट इट इज आवर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो कांस्टेंट पार्ट है वो राइट साइड में लेना है। जब आप कांस्टेंट पार्ट राइट साइड में ले जाओगे तो आपके पास क्या बचता है, प्लस c अपॉन a राइट हैंड साइड में ले जाने के बाद हमारे पास ये माइनस c अपॉन a में कन्वर्ट हो गया। ये प्लस c अपॉन a राइट हैंड साइड में ले जाने के बाद माइनस c अपॉन a में कन्वर्ट हो गया। थर्ड एंड फाइनल पार्ट ऐड करना बेटा, एडिंग हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर on both sides of इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 के दोनों तरफ कोफिशिएंट ऑफ x जो भी हमारे पास है इसका हाफ का होल स्क्वायर दोनों तरफ में लिखना है। तो अगर ऐसा करते हैं तो हाफ कोफिशिएंट ऑफ x अपने पास b अपॉन a है, हाफ करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया b अपॉन 2a। तो हम क्या करेंगे, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो यहां माइनस c अपॉन a प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर। ऐसा करने से क्या बनता है रिजल्ट, या तो इस लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस b होल स्क्वायर का रिजल्ट बनेगा, या फिर a माइनस b होल स्क्वायर का रिजल्ट हमेशा बनता है इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहां a प्लस b होल स्क्वायर बना या a माइनस b होल स्क्वायर बना। लेट अस चेक इट, हम इसे चेक करने की कोशिश करते हैं। यहां स्क्वायर वाली दो टर्म मेरे पास है, एक को a मान लिया, दूसरे को मैंने b मान लिया। तो देखते हैं a स्क्वायर प्लस 2a की जगह मैंने x लगा दिया, b की जगह मैंने b अपॉन 2a लगा दिया। तो ऐसा लगाने के बाद क्या बीच वाली टर्म तैयार हो रही है, चेक किया तो 2 से 2 कट जाएगा, वही bx अपॉन तो हम इस ऊपर वाले टर्म को इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहां क्या आ गया, राइट में अपने पास, राइट में माइनस c अपॉन a प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कुछ रिजल्ट आएगा। तो यहां मेरे पास सभी पॉजिटिव है तो a प्लस b होल स्क्वायर बनेगा। a की जगह मेरे पास x है और b की जगह b बाय 2। तो ये बन गया x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर। राइट में क्या है आपके पास, राइट में माइनस c अपॉन a प्लस ऑफ b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। एलसीएम a और 4a स्क्वायर का 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर को डिवाइड करो a से, तो 4a स्क्वायर अपॉन a क्या आ जाएगा, केवल 4। तो कितना आया, 4ac प्लस 4a स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर कैंसिल आउट, तो
कितना आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से स्क्वायर हटा रहे हैं, जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे सेकंड साइड प्लस माइनस का रूट लग जाएगा, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब इस प्लस b अपॉन 2a को दूसरी तरफ ले जाएंगे अगर हम, तो ये बन जाएगा माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट पूरे का है तो ऊपर वाले का भी स्क्वायर रूट, नीचे वाले का भी स्क्वायर रूट, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर। 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा 2a। तो यहां से आपके पास रिजल्ट आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज योर क्वाड्रेटिक फार्मूला, minus b plus minus root d. This is the value of d, that is b square minus 4ac upon 2a. Okay. Now let us take some example for solving the equation by completing the square method. Consider an equation 4x squared plus 3x minus 2 equal to 2. Let us solve it by using completing the square method and then by using quadratic formula. Okay. First is quadratic formula. Quadratic formula. क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए? सबसे पहले कंपेयर करें किससे, स्टैंडर्ड फार्मूले से। कौन सा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करो, कंपेयर करके इस a b c की वैल्यू निकालिए। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू कितनी आई -2। a b c आ गया। अब क्या निकालेंगे, कैपिटल D, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जिसे हम जानते हैं कैपिटल D, जिसकी वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac और b की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, वैल्यू ऑफ a इज 4, वैल्यू ऑफ c इज -2। 3 स्क्वायर इज 9, माइनस इनटू माइनस प्लस, 4 4 जा 16, 2 जा 32, 32 प्लस 9 दैट इज 41, वैल्यू of d is 41 here. So we can calculate the value of x by using quadratic formula, that is minus b plus minus root d upon 2a. Minus of b is 3 minus 3 plus minus root d 41 upon 2a, value of a is 4. So we comes out with the value minus 3 plus root 41 upon a and minus 3 minus root 41 upon a. This is the real solution. This is the solution for the given quadratic equation by using quadratic formula. तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उससे कंपेयर करके a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट दैट इज कैपिटल D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। कैपिटल D की वैल्यू निकालने के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास, जो वेरिएबल जो भी है, चाहे x है, चाहे y है, चाहे z है, उसकी वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला दैट इज माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। तो यहाँ a b c d सारी वैल्यू रख दीजिए, आपका सॉल्यूशन तैयार। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। इसी को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। क्या आंसर अलग आएगा? ना, कभी अलग नहीं आएगा। आंसर हमेशा एक जैसा ही आना चाहिए। तो चलिए यहाँ 4x स्क्वायर है, तो क्या करेंगे हम, दोनों तरफ किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। डिवाइडिंग, अब कौन सा मेथड चल रहा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, completing the square method, dividing both sides of equation number 1 किससे डिवाइड करेंगे, by coefficient of x square that is 4। तो दोनों तरफ हमने 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करने के बाद क्या आया, 4x square upon 4 plus 3/4x minus 2/4 equal to 0/4। यहाँ से क्या पूछा जाएगा, 2/4 1/2, x square plus 3/4x minus 1/2 and 0/4 is
0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अगले स्टेप में हमने कहा था कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में ले जाएंगे। तो चलिए ले चलते हैं राइट साइड। माइनस का 1/2 उधर ले जाएंगे तो प्लस का 1/2 आ जाएगा। ये आपका सेकंड स्टेप है। उसके बाद क्या करेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ x जो भी मेरे पास है उसका हाफ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐड करने जा रहे हैं। एडिंग हाफ कोफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। कौन सी दोनों साइड, ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, x² प्लस 3/4x। इसका हाफ करें, 3/4 का हाफ का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया, 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8, 3/8। तो 3/8 का होल स्क्वायर दोनों साइड ऐड करना है, दोनों साइड 3/8 का होल स्क्वायर ऐड करना है। ऐसा करने से क्या बन गया, a², ये प्लस का 2ab प्लस का b², यानी ये हमेशा बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। कर लीजिए, चेक कर लीजिए, x² प्लस 2 a की जगह x लगेगा, b की जगह 3/8 लगेगा और प्लस का 3/8 होल स्क्वायर। चेक करिए क्या ऊपर वाला बना, तो 2 4 जा 8 आ गया 3/4x। इधर कितना है 1/2, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 2 और 64 का एलसीएम 64, 2 से डिवाइड करो 64 को 32, 32 1 जा 32, 64 को 64 से डिवाइड करिए 1, 1 9 जा 9, 32 प्लस 9 41 अपॉन 60। यहाँ ये a² प्लस 2ab प्लस b², तो a प्लस b होल स्क्वायर दैट इज x, a की जगह x है, b की जगह 3/8, a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला ही बन गया। अगले स्टेप में यहां से स्क्वायर हटाएंगे। जब यहां से आप स्क्वायर हटाओगे तो क्या बनेगा, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस का रूट लग जाएगा। रूट का मतलब 41/64। चलिए तो अब ये प्लस का 3/8 उस तरफ ले जाओ, उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 3/8 आ गया, माइनस का 3/8 प्लस माइनस रूट पूरे का है तो दोनों का अलग अलग कर लो, न्यूमरेटर का रूट अलग और 64 का रूट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आ गया, x की वैल्यू माइनस का 3/8 प्लस रूट 41/8 और दूसरा माइनस का 3/8, एक बार प्लस एक बार माइनस रूट 41/8। इस तरह से आप इक्वेशंस को, तो ये था आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो चलिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको सिखाया। दिस इज द बेसिस ऑफ द चैप्टर। एक आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला किया है, उसमें नेचर और रूट्स है। टॉपिक है नेचर और रूट्स। नेचर और रूट्स किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर और रूट्स, नेचर और रूट्स का मतलब ये है कि हमारे पास रूट्स रियल होंगे या कोई भी रियल रूट नहीं हो, इसके बारे में बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले रियल एंड इक्वल रूट के बारे में बात होती है। रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल और इक्वल रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होंगे, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। अगर हमारे पास कैपिटल D दैट इज डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जिसे बोलते हैं, अगर हमने जो डिस्क्रिमिनेंट निकाला उसकी वैल्यू 0 के इक्वल है तो हमारे पास रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं। इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जिसे d बोलते हो, b² - 4ac होती है। यानी सारी बात a b c पर डिपेंड करती है। दूसरी बात, अगर हम रियल एंड डिफरेंट रूट्स कहें, रियल एंड डिफरेंट रूट्स, रियल एंड डिफरेंट रूट्स, रियल और डिफरेंट रूट के बारे में बात करें तो ये तब होगा जब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है। डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ी, 0 से बड़ी का मतलब सभी के सभी पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, सभी पॉजिटिव वैल्यू, यानी d की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी आ जाए।
कोई इक्वलिटी। तीसरी कहानी, नोट एनी रियल रूट, नोट एनी रियल रूट्स, या जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट्स कब होंगे? एक ही कंडीशन है, जब d की वैल्यू लेस देन 0 हो। इसका मतलब d हमारा नेगेटिव आ जाए। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है d, तो अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो गिवन इक्वेशन के क्या होंगे? कोई भी रियल रूट नहीं निकलेंगे, कोई भी रियल रूट नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर केवल रियल रूट्स हो, केवल रियल रूट्स हो, तो d आपका ग्रेटर देन 0 तो भी रियल है, इक्वल टू 0 तो भी रियल है। इन दोनों को कंबाइन करके बनता है d आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो रियल। केवल रियल रूट दिया हो तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन लगानी है। क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच given quadratic equation will have real and equal roots। इक्वेशन दी है आपको, मान लीजिए 2x² प्लस kx प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे? आपसे कहा गया गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट, रियल और इक्वल रूट के लिए क्या होगा? d की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो चलिए सबसे पहले हम कंपेयर करें, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से a b c की वैल्यू ले लेते हैं। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू k और c की वैल्यू कितनी है अपने पास? 5, c की वैल्यू 5। तो हम क्या कहेंगे? फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल और इक्वल रूट्स के लिए क्या होगा? d इक्वल टू 0 मींस b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी? k, तो k² माइनस 4, a की वैल्यू 2 तो 2, c की वैल्यू 5 इक्वल टू 0। इट मींस k² माइनस 4 टू द 8 5 जा 40 इक्वल टू 0। तो k² इक्वल टू 40। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस का रूट बन जाएगा, k की वैल्यू प्लस माइनस रूट। तो रियल और इक्वल रूट के लिए k की वैल्यू प्लस माइनस रूट। इस तरह से आप जो है k की वैल्यू निकाल लीजिए। तो चलिए इतना करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन आपसे कहते हैं फाइंड द नेचर और रूट्स, नेचर और रूट्स ऑफ 2x² माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। केवल नेचर और रूट्स पूछा है, केवल नेचर और रूट्स पूछा है। तो चलिए नेचर और रूट्स कौन बताएगा? केवल d बताएगा, कैपिटल D। चेक करें कैसा है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो कंपेयर करो इसे किससे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। a की वैल्यू क्या आ गई? 2, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 3, तो d की वैल्यू क्या बन जाएगी? b² माइनस 4ac। d की वैल्यू b² माइनस 4ac। b कितना है? -1 -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, 1 माइनस 24 माइनस 23। तो d की वैल्यू आ गई -23। d आपका नेगेटिव आ गया, d आपका नेगेटिव आ गया बिकॉज d लेस देन 0। सो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, d लेस देन 0 मतलब will not have any real roots, any real roots। अगर d लेस देन 0 है तो कोई भी रियल रूट इस इक्वेशन
के नहीं बनेंगे। तो चलिए नेक्स्ट, दिस इज द नेचर ऑफ रूट्स, कोई रियल रूट नहीं। अगर डी 0 से बड़ा आ जाता तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स होते। डी लेस देन 0 नेगेटिव है तो कोई रियल रूट यहाँ पे नहीं। तो इस तरह से आपने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जाना। चलिए कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। क्वेश्चन है सोल्व फॉर x। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। सोल्व फॉर x ऐसा लिखा मिलेगा। क्वेश्चन ये है आपका, x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ कंडीशन भी दे रखी है कि x की वैल्यू आपकी -4 नहीं होना चाहिए और x की वैल्यू 7 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए -4 और 7? कारण देखिए, अगर हम यहाँ x की जगह -4 लगा दें तो -4 + 4 0, 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। यहाँ इसी प्रकार से 7 लगाओगे, 7 - 7 0, 1/0 इंफिनिटी। तो इस वजह से ये -4 और 7 x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं क्या कुछ होगा, कैसे इसे सोल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन जान लीजिए। फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, कैसे करेंगे? बाय टेकिंग देयर एलसीएम। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट है उनका मैं एलसीएम लेके जा रहा हूं। दो अलग-अलग जो टर्म होती है उनका एलसीएम क्या होता है? उनका प्रोडक्ट। दो अलग-अलग टर्म का जो एलसीएम है वो उनका प्रोडक्ट होता है। तो x + 4 और x - 7 का मुझे एलसीएम लेना है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन इनका एलसीएम होगा और इनकी मल्टीप्लिकेशन है x + 4 * x - 7। तो अगर हम इस पूरे को x + 4 से डिवाइड करेंगे, इस पूरे को x + 4 से डिवाइड करेंगे तो x + 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? x - 7। x - 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा x - 7 माइनस। अब इस पूरे को आप x - 7 से डिवाइड करो तो क्या होगा? x - 7 कट जाएगा, क्या बचेगा? x + 4। x + 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? x + 4। यहाँ क्या है? 11/। चलिए इसे सोल्व करते हैं। यहाँ जैसे आप इसे सोल्व करेंगे x - 7 -x और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। नीचे x + 4 x - 7 को मल्टीप्लाई करो, x को x से करोगे x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 7 माइनस का 3x आ जाएगा। 4 7 जा 28 आ गया। इधर कितना? 11/30। यहाँ प्लस x है माइनस x कट गया, -7 और -4 कितना हो जाएगा आपके पास? -11। -11/x² - 3x - 28 = 11/। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा? -11 * 30 मस्ट बी इक्वल टू 11 * x² - 3x - 28। 11 must be cancelled out with this. We got the result as x² - 3x - 28। यहाँ -30 आपके पास है, इधर आके +30 = 0। तो अपने पास सॉल्यूशन क्या आया? x² - 3x 30 - 28 + 2 = 0। तो इसे अब हमें सॉल्व करना है। इसके फैक्टर बनाइए, इसके फैक्टर आ जाएंगे x - 2 x - 1 = 0। तो x की वैल्यू आ गई क्या? 2 या फिर 1। तो इस तरह से आप इसे ओके। नेक्स्ट, let us take one more example. The sum of reciprocal of Rahman says the sum of reciprocal of Rahman से the sum of reciprocal Rahman से चलो
तो पढ़ाई है हाँ ये गलत हो गया। क्या हो गया ये सेलेक्ट करके दोबारा कर दीजिए फिर तो सब बता देना हमको इस वक्त किया था मैं। The sum of reciprocal of Rahman's age in years 3 years ago, 3 years ago, and 5 years from now, and 5 years from now is 1 by 2. Find his percentage. Find his percentage. Find his percentage. Solution. We have to find out percentage of Rahman. Consider, देखिए ये 25 पे रोका था 2 मिनट के लिए। Percentage of Rahman. Consider percentage of Rahman equal to x years. जब भी एज का कंसेप्ट हो हमेशा हमें प्रेजेंटेज को ही कंसीडर करना होता है, तो हमने प्रेजेंटेज को कंसीडर कर लिया। जो रहमान की प्रेजेंटेज है वो x है। अब इसने हमसे कहा कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इन ईयर 3 इयर्स है, 3 साल पहले, तो आज x एज है इसकी 3 साल पहले के बारे में अगर हम बात करें तो जितना पहले कहा जाए उतना माइनस कर दीजिए। फिर उसके बाद इसने कहा एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, पर आज से 5 साल के बाद, आज x है तो 5 साल के बाद इसकी एज क्या हो जाएगी x + 5। जितने साल बाद कहे उतना प्लस कीजिए, जितना पहले कहे उतना माइनस कीजिए। तो अब क्या करना है कि हमारे पास जो 3 साल पहले की एज है उसका क्या करना है रेसिप्रोकल। तो 3 साल पहले की एज x - 3 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 3 साल पहले की जो भी एज है उसका रेसिप्रोकल करना है, तो 1/x - 3 आ जाएगा। और रहमान की 5 साल बाद जो एज है उसका रेसिप्रोकल करना है, 1/x + 5 आ जाएगा। और इस रेसिप्रोकल का जो सम है इज, इसका मतलब इक्वल टू इज वाज विल बी मींस इक्वल टू कितना है 1/3, इक्वल टू में क्या लगा लीजिएगा 1/3। तो इस प्रकार से आपके पास एक कंडीशन के अकॉर्डिंग बना, इसे हम सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चलिए कन्वर्ट करते हैं। चलिए हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 इक्वल टू 1/3। यहां से एलसीएम लीजिए, x - 3 x + 5 का दो अलग अलग टर्म का एलसीएम क्या होता है, इनका प्रोडक्ट होता है। राइट में किसके इक्वल है 1/3 के इक्वल है। तो चलिए इसे सोल्व करें, देखते हैं क्या कुछ हमारे पास रिजल्ट के रूप में हमें मिलेगा। इन दोनों को x - 3 से डिवाइड करें तो x - 3 कट जाएगा, क्या बचेगा x + 5। x + 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, x + 5 आ गया, प्लस अब इस पूरे को x + 5 से डिवाइड करो तो x + 5 कट जाएगा, x - 3 बचेगा, x - 3 को 1 से मल्टीप्लाई x - 3 आ जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास x + x दैट इज 2x हो गया, प्लस 5 - 3 + 2 हो गया। नीचे क्या है x * x x², 5 - 3 + 2x, माइनस का 3 + 5 माइनस का 15 इक्वल टू 1/3। करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, x² + 2x - 15 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x² + 2x - 15 हो गया। यहाँ हमारे पास क्या है 3 को 2x + 2 से करो, 3 × 2 = 6x, 3 × 2 = 6 हो गया। इसे सॉल्व करें, x² + 2x - 15 - 6x - 6 = 0। It means we would have x² 2x - 6x that is -4x -15 - 6 -21 equal to 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन कन्वर्ट हुई है, इसे हमें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं 27 × 27 and 7 × 3 = 27, 7 × 3 = 21, 21 × 21 7 × 3 = 27। तो
तो 7 3 मींस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, x माइनस 7, इन दोनों में 3 कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। एक फैक्टर आपका x माइनस 7, सेकेंड फैक्टर आपका x प्लस 3 इक्वल टू 0। दो फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन 0, आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड 0, आइदर फर्स्ट फैक्टर दैट इज x प्लस माइनस x माइनस 7 इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर दैट इज x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 3 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 7 आ जाएगी। x परसेंटेज मानिए जो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, एज कैन नेवर बी नेगेटिव। जब एज नेगेटिव नहीं हो सकती कैन नेवर बी नेगेटिव। सो नेगलेक्ट x इक्वल टू माइनस 3। सो नेगलेक्ट x इक्वल टू माइनस 3। तो हमारे पास x इक्वल टू 7, दिस इज द परसेंटेज ऑफ रहमान। सो परसेंटेज ऑफ रहमान कितनी आ जाएगी 7। सो परसेंटेज ऑफ रहमान, सो परसेंटेज ऑफ रहमान इक्वल टू x इक्वल टू 7। This completes the proof. Okay.